बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Assalamu alaikum dear first year students. I am Jafar Wazir and today I am with a new video that is about computer networks. As we have covered the chapter, so today we are going to do the revision plus exercise of this chapter. You can find our videos of this whole chapter on our YouTube channel, that is PF Postgraduate College PF, and you can have all these videos over there. So you have started this chapter with the name that is computer networks. As you all know that what is a computer network, आप लोगों ने पढ़ा computer network is a collection of computer devices, collection of devices or computers. Then they make a computer network. It is actually a collection. But what is the reason? Why do we connect computers? Why do we need a computer network? These are the two questions that you may ask, or someone can ask you, that why do we make a computer network? So there you have learned that we have two main reasons. Number one is for data sharing or information sharing. You can say data or information sharing. Number two, resource sharing. Resources sharing. The two main objectives of a computer network, that whenever you design or you create or you make a computer network, these are the two main objectives or reasons that why do you create a computer network. Number one is data sharing. Number two is resource sharing. When you want to communicate for the purpose of communication and for the purpose of sharing resources. Fine. तो जब आपने चैप्टर स्टार्ट किया, आपने उसमें पढ़े कंपोनेंट्स भी पढ़े, आपने उसमें मोड्स पढ़े, मीडिया पढ़ा, डिवाइसेस पढ़ी, टाइप्स पढ़ी, टोपोलॉजीज पढ़ी और आईपी एड्रेसिंग पढ़ी. आपने पढ़ा कि कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे पास 5 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बहुत जरूरी है कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए. नंबर 1, सेंडर. A person who send data is called a sender. The data that is sent on a network is called a message. M-E-S-S-A-G-E, message. The third part is medium. The path through which the sender is sending the data. The path through which the sender is sending the data or message or information is called the medium. You have studied the types of medium as well. Number 4 is protocols or procedure. Protocol, procedure or standards, rules, guidelines. You can name them any name. You can give them any name. Protocols, standards, guideline or procedures, methods. And the fifth and the last one is the sender is sending data to who? To receiver. There should be a person who should be receiving the data. So these are the 5 components. Whenever you design a network, whenever you are creating a network, you need these 5 basic components: sender, message, medium, protocols and receiver. The next topic that you studied in this chapter was modes of communication. Modes of communication. You have studied first mode of communication is simplex. As you all know that what is the simplex means, and half duplex and full duplex. 3 modes of communication. Very important question this one is. It may come in paper. That what does simplex, differentiate between simplex and half duplex. A question can come like this: differentiate between simplex and full duplex, or differentiate between half duplex and full duplex. You also need to have draw a diagram for this as well. या आप इन तीनों पर नोट लेके छोटा सा नाम लेकर उनको डिफाइन करें. सिंप्लेक्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि सिर्फ एक साइड से कम्युनिकेशन होती है. सिर्फ सेंडर डेटा सेंड करता है, वो मैसेज सेंड करता है, मीडिया भी यूज करता है, प्रोटोकॉल्स भी, लेकिन रिसीवर उसमें रिप्लाई नहीं दे सकता. ठीक है. और हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि जब सेंडर रिसीव डेटा सेंड करता है तो वो रिसीवर उस टाइम नहीं बोल सकता. जब सेंडर डेटा सेंड करता है, उसको डेटा रिसीव होता है, तो फिर उसके
बाद जब इसका टर्न खत्म हो जाए फिर रिसीवर की मैसेज आते हैं। और फुल डुप्लेक्स में दोनों एट अ टाइम बात कर सकते हैं। वॉकी टॉकी की एग्जांपल है हाफ डुप्लेक्स की। जब आप वॉकी टॉकी में बात करते हैं सिक्योरिटी वाले, तो अक्सर एक साइड से बंदा बोलता होता है तो दूसरे की आवाज फिर नहीं आती। जब पहला वाला बंदा या पहला वाला यूजर अपनी बातें खत्म करते हैं तो फिर सेकंड वाला यूजर। तो ये आपने पढ़े मोड। फिर आपने पढ़ा कि मीडिया भी बहुत जरूरी है। इधर लिखा हुआ है मीडियम। और मीडिया इज द पाथ थ्रू व्हिच डेटा विल बी सेंड। तो मीडिया में आप लोगों ने इसके टाइप पढ़े। मीडिया में कौन कौन से टाइप्स है आपके पास? मीडिया में आप लोगों ने पढ़े केबल। आप लोगों ने इसकी दो टाइप्स पढ़ी है कि गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। इसमें आप लोगों ने नंबर 1 पढ़ा ट्विस्टेड पेयर केबल, बहुत जरूरी सवाल। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। So these are the media through which you can join computers. इसमें और आगे भी है अनगाइडेड वायरलेस भी आ सकते हैं। वायरलेसली also you can connect computers. वायरलेस मीडिया जिसमें आपके पास इंफ्रारेड है, ब्लूटूथ है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, मोबाइल कम्युनिकेशन है। तो ये मीडिया भी जरूरी है नेटवर्क को बनाने के लिए। फिर आप उसमें अगर ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल करते हो तो भी आप उसे नेटवर्क बना सकते हो। इफ यू आर यूजिंग अ कोएक्सियल cable, then you can also create or make a computer network. You can also use a fiber optic cable, but for long distance. If you are connecting two continents, let's say for example, then you use fiber optic cable. It's very expensive cable. और वायरलेस आप ब्लूटूथ पे ग्रुप बना रहे हो या ज़ेप पे आपने कनेक्ट किया, वाईफाई पे आप नेटवर्क बना रहे हो कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर या अपने कैंपस के अंदर आपने ये बना। एक फिर नेक्स्ट आपके पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि स्विच, व्हाट इज अ स्विच, राउटर एंड अ गेटवे। थर्ड आपके पास था ये जरूरी सवाल। ये मीडिया होता है आपके पास, सॉरी नेटवर्क डिवाइस होते हैं जो कि आपके नेटवर्क, अगर आपका नेटवर्क साइज में ग्रेटर बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, तो फिर आपको डिवाइसेस चाहिए होती हैं जो कि एक नेटवर्क के मुख्तलिफ पार्ट्स को कम्युनिकेशन करने के लिए, उनको लिंक करने के लिए आप इन डिवाइसेस को यूज करते हैं। जिसमें आपके पास है स्विच है, राउटर है, गेटवे है, रिपीटर्स है आपके पास जो डेटा को रिपीट करते हैं जस्ट टू कि जब उनका फ्रीक्वेंसी स्लो होती है, लो डाउन होती है, तो इसके लिए आप रिपीटर इस्तेमाल करते हैं। स्विच एक डम डिवाइस है जो सिर्फ डेटा उसके पास आता है तो हर डायरेक्शन में उसको सेंड करता है। राउटर एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेन को, फॉर एग्जांपल एक लेन को दूसरे लेन के साथ या एक वेन को दूसरे वेन के साथ, और गेटवे पाथ है। इस तरह फिर आप लोगों ने नेटवर्क की फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास था दैट वाज नेटवर्क टाइप्स। आप लोगों ने इसमें 4 टॉपिक्स पढ़े हैं इसके। नंबर 1 इज, अगर किसी को याद हो, लेन, बहुत जरूरी सवाल है, मेन, लेन, मेन और वेन। इसमें चौथा भी है आपके पास वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन में आ सकते हैं। व्हाट डज वीपीएन स्टैंड फॉर, व्हाट डज वेन स्टैंड फॉर, व्हाट डज मेन, सॉरी मैंने नहीं लिखा, व्हाट डज मेन स्टैंड फॉर और व्हाट डज लेन स्टैंड फॉर। डिफरेंशिएट बिटवीन लेन एंड मेन क्वेश्चन आ सकता है, बहुत जरूर आता है पेपर में। डिफरेंशिएट बिटवीन मेन एंड वेन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वेन, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीपीएन एंड, तो इसमें सवाल आ सकता है आपके पास। लोकल एरिया नेटवर्क, अ नेटवर्क दैट यू क्रिएट विद इन अ कैंपस और यूनिवर्सिटी और कॉलेज, और आप घर के अंदर घर बना सकते हैं। 10, 12, 20 कंप्यूटर्स का नेटवर्क आप जब बनाते हो तो आप उसको बोलते हो लेन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दैट इज कॉल्ड मेन इन शॉर्ट। ये आप किससे इस्तेमाल करते हो, जब आपके कैंपस के ब्रांचेस होते हैं, 2, 3, 4, 5 ब्रांचेस को आप जब आप कनेक्ट करते हो, तो आप जब मतलब 2-3 लेन को सिंपल वर्ड्स में जब आप 2-3 लेन को कनेक्ट करते हो तो उससे फिर बनता है आपके पास मेन। और वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क का बनता है जब when 2 or more than 2 main combine they form a WAN। और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है, ये आपके पास a virtual private network is a network that uses a public telecommunication infrastructure। ये आपके पास इसकी है। फिर आपने इसके बाद
नेक्स्ट आपने पढ़ी टोपोलॉजीज। आपने पढ़ा कि इसकी 4 टोपोलॉजीज हैं। फर्स्ट आपके पास कौन सी थी? रिंग, बस, यस वेरी गुड, बस। थर्ड आपके पास कौन सी थी? रिंग, बस। ये फोर्थ वन आपके पास थी मैश और स्टार। इसकी तरतीब आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं। रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। रिंग में आप इसका नाम इसका याद होगा कि सर्कल सा बनता है, कंप्यूटर्स में कनेक्ट होते हैं, 4 कंप्यूटर 3 कंप्यूटर, लेकिन सब कनेक्ट होते थे इसमें रिंग के शक्ल में। बस में आप लोगों ने पढ़ा है कि एक मेन केबल होता है जिसके साथ ड्रॉप डाउन केबल के साथ कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, तो इट इज कॉल्ड अ बस टोपोलॉजी। मैश आप लोगों ने स्टार टोपोलॉजी पहले स्टार्ट करते हैं कि जिसमें ये कंप्यूटर फॉर एग्जांपल 3 कंप्यूटर्स हैं, ईच फॉर एग्जांपल ये स्टार और बीच में एक डिवाइस पड़ा होता है, सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन होती है, एक हब लगा होता है HUB हब, उसके साथ लेट्स से फॉर एग्जांपल 3 4 5 6 इतने कंप्यूटर जब डिवाइड। और मैश आपने कहा है कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ या हाई जब 2-3 टोपोलॉजी स्टार और मैश टोपोलॉजी। लेट्स से 4 कंप्यूटर्स आपके पास, ईच एंड एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अदर कंप्यूटर। मैश टोपोलॉजी। हाइब्रिड के मैंने बता दिया, हाइब्रिड इज अ मिक्सचर ऑफ 2 or 3 टोपोलॉजी। मैश है in which each and every computer is connected to other computer। तो क्या मतलब हुआ, जब आपका हर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा दूसरे कंप्यूटर के साथ, तो इसके केबलिंग का मसला था। आप लोगों ने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के पढ़े, फिर केबलिंग का मसला होता है। इसमें ज्यादा केबल दरकार होती है, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसमें आपके पास नेटवर्क एनी टाइम अवेलेबल होगा। ये फॉल्ट टॉलरेंस की जाती है, फॉल्ट टॉलरेंस, FAULT, फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट को बर्दाश्त करने की सलाहियत इसमें ज्यादा होती है मैश टोपोलॉजी, क्योंकि हर कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो अगर इसमें से एक कंप्यूटर का केबल दूसरे से कट जाए तो फिर भी उसके पास पाथ अवेलेबल होता है, वो कम्युनिकेट कर सकता है दूसरे कंप्यूटर के साथ। लास्ट जो आपका टॉपिक था इसमें था आपका आईपी एड्रेसिंग, कि अगर सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, आपने उसके टोपोलॉजीज पढ़ ली, उसने टाइप्स पढ़ लिया, आपने डिवाइसेस पढ़ ली, मीडिया पढ़ लिया, बोर्ड्स पढ़ लिया और उसमें कंपोनेंट्स पढ़ लिए। तो जब हर एक कंप्यूटर से एक साथ कनेक्ट होता है तो उसका अपना एक नंबर होता है। आपने पढ़ा है कि उसका एक यूनिक नंबर होता है, हर एक कंप्यूटर का, डिवाइस का, प्रिंटर का भी अपना एक नंबर होता है, जो कि दूसरे मतलब एड्रेस होता है उसका। वो नंबर क्या होता है? उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसको आप बोलते हो आईपी एड्रेसिंग, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। ये छोटी सी हो गई आपकी रिवीजन चैप्टर की। अभी हम इससे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। आप जरा वीडियो को पास कर लें और अपनी बुक्स निकालें, पेज नंबर 175 पे जाएं, पेज 175 जी। वीडियो पास करने के बाद आप अपने बुक में पेज नंबर 175 निकालें, 175। सेलेक्ट द बेस्ट चॉइस फॉर द फॉलोइंग MCQs। A collection of 2 or more connected computers to share resources and data is called a कलेक्शन। जो बनती है आपके पास, तो कलेक्शन से क्या चीज बनती है आपके पास? कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें चेक करें। अगर जहां पर भी लिखा हुआ है नेटवर्क तो उस पर सर्कल लगाएं। नंबर ए आपके पास है राउट, पी आपके पास है रूट है, नंबर बी आपके पास है नेटवर्क, सी पाथ एंड डी इज मीडियम। तो बी पे लिखा हुआ है नेटवर्क। तो आप नेटवर्क आप लोगों ने पढ़ा कि नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा। तो आप बी पे सर्कल लगाएं। नंबर 2 MCQ आपके पास है, इन विच कम्युनिकेशन मोड की बात हो रही है, ठीक है। कम्युनिकेशन मोड, इन विच कम्युनिकेशन मोड डेटा कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। बोथ डायरेक्शन में डेटा को सेंड होता है, लेकिन बट नॉट एट द सेम टाइम, लेकिन एक वक्त में नहीं, मतलब यूनि डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में एक डेटा सेंड करता है, फिर दूसरा उसको रिप्लाई देता है, फिर वो रिप्लाई देता है, मतलब नंबर वाइज। तो आप लोगों ने पढ़ा कि सिंपलेक्स में से वन डायरेक्शन है, इसमें तो एक ही साइड से रिप्लाई देता है। फुल डुप्लेक्स में आप लोगों ने पढ़ा कि दोनों साइड से बातें हो रही है एक ही टाइम में। हाफ डुप्लेक्स में जो आपने सीखा कि हाफ डुप्लेक्स में जब वॉकी टॉकी की एग्जांपल है कि एक बंदा जब इधर से बोलता है तो वो दूसरे बंदे की आवाज नहीं आती, जब बटन उसने प्रेस किया होता है बोल रहा होता है। जब बटन रिलीज करता है तो इसकी बातें खत्म, वो सारी बातें सुनता है, फिर वो बटन प्रेस करता है और उसकी बातें आती है। तो ये आपके पास आता है हाफ डुप्लेक्स।
नंबर 2 में ऑप्शन है आपके पास नंबर ए सिंप्लेक्स, बी फुल डुप्लेक्स, सी हाफ डुप्लेक्स, डी डुप्लेक्स। तो इसमें आप सी करें हाफ डुप्लेक्स। नंबर 3 डैश इज द डेटा और इंफॉर्मेशन दैट इज टू बी कम्युनिकेटेड ओवर द नेटवर्क। जब आप नेटवर्क पर डेटा कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ईमेल करते हो। फॉर एग्जांपल अपनी सीवी किधर सेंड कर रहे हो, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप किस चीज को शेयर करते हो डेटा नेटवर्क पर। सेंडर क्या चीज शेयर करता है? ये क्या है? मैसेज। तो इसमें देखिए कहां पर लिखा हुआ है मैसेज। ए आपके पास है मैसेज, बी सेंडर, सी मीडियम और डी रिसीवर। तो नेटवर्क पर कौन सी चीज मूव कर रही होती है? मैसेज। तो इसमें मैसेज पे सर्कल लगाएं, ए पार्ट। नंबर 4 है आपके पास डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन। एक नेटवर्क पर जब डेटा को गवर्न किया जाता है, प्रोसीजर्स है आपके पास, गाइडलाइंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, तो वो आपके लिए प्रोसीजर जब बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स। इसमें सर्च करें प्रोटोकॉल कौन से नंबर पर है। नंबर ए आपके पास है मैसेज, बी सेंडर, सी मीडियम, डी प्रोटोकॉल्स। तो डी पे आप सर्कल लगाएं। नंबर 5 है आपके पास इन डैश मोड बोथ स्टेशंस कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक ही वक्त में दोनों मोड की बात हो रही है। फिर एमओडी मोड, कंप्यूटर मोड में आपके पास 3 मोड है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। कौन से मोड में सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही टाइम में बात कर रहे हैं? तो फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में सेंडर रिसीवर दोनों एक ही टाइम में बात कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है सिंप्लेक्स, नंबर बी फुल डुप्लेक्स, सी हाफ डुप्लेक्स और डी डुप्लेक्स। तो आप इसमें बी कर दें, फुल डुप्लेक्स। नंबर 6 आपके पास विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन डेटा इज ट्रांसमिटेड 1 बाइट एट अ टाइम। 1 बाइट एट अ टाइम इसमें आप कर दें। नंबर ए आपके पास है सिंप्लेक्स, नंबर बी सिंक्रोनाइज, बी एसिंक्रोनाइज, डी डुप्लेक्स। तो इसमें आप सी कर दें, एसिंक्रोनाइज। नंबर 7 पे आ रहे पेज नंबर 176 डैश केबल इज formed of 2 insulated copper wires twisted together। देखिए इसमें लिखा हुआ है twisted together। तो ऑप्शन में देखिए जहां पर twisted लिखा हुआ है आपका ऑप्शन है। नंबर 1 कोएक्सियल फाइबर ऑप्टिक, नंबर सी C85, नंबर डी ट्विस्टेड पेयर। तो इसको डी में कर दें क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ट्विस्टेड टू ट्विस्टेड, ट्विस्ट मतलब इस तरह मुड़े हुए एक के साथ, तो डी इसमें कर दें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस इज यूज्ड टू फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क्स। डिफरेंट नेटवर्क पर आप डेटा कौन से डिवाइस के साथ करते हैं? स्विच के साथ, राउटर के साथ, गेट के साथ। स्विच नहीं है, राउटर है आपके पास, इसमें राउटर कर दें। नंबर बी आपके पास है राउटर। ए पे स्विच, बी राउटर, डी गेटवे, सी गेटवे और डी मॉडेम। तो इसमें आप बी कर दें, राउटर। इन डैश नेटवर्किंग देयर आर नो डेडिकेटेड सर्वर्स और हायरार्की अमंग द कंप्यूटर्स। ए पीयर टू पीयर, इसमें पीयर टू पीयर कर दें। नंबर 10 works by using the shared public infrastructure while maintaining privacy through security procedure। LAN, WAN, VPN, MAN। इसमें आपके पास आता है C virtual private network। C कर दें इसमें VPN। नंबर 11 पेज नंबर 176 पे which of the following topology is most expensive to implement। सबसे महंगी टोपोलॉजी, सबसे महंगी टोपोलॉजी कौन सी है? आप लोगों ने पढ़ा कि मैश, इसमें बहुत से ज्यादा केबलिंग चाहिए होती है। तो इसमें मैश लेके आपके पास डी पे है, मैश, डी पे सर्कल करें। नंबर 11 में डी। हाउ मेनी लेयर, ये आपके पास इंक्लूड नहीं है कोर्स में, इसको मत करें। नंबर 13 में इंक्लूड नहीं है, 14 में नहीं है। लास्ट वन है आपके पास, लास्ट वन इसमें गलती है कि इन डैश टोपोलॉजी ईच नोड कंप्यूटर सर्वर पेरिफेरल डिवाइस अटैच्ड टू कॉमन केबल। कॉमन केबल आप लोगों ने पढ़ा है कि बस होती है जिसमें सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। इसमें आपने इसमें चॉइस नहीं दी। नंबर 15 चेक करें, इसमें गलती है, बस इसमें आता है लेकिन इन्होंने बस चॉइस नहीं दिया। तो रिंग में कॉमन केबल नहीं होता। रिंग इसमें थोड़ा सा हो रहा है लेकिन रिंग इसका सही नहीं। इसमें इसका करेक्ट आंसर बस टोपोलॉजी है लेकिन आपके चॉइस में नहीं। Question number 2, short answer to the following question. Show all the modes of data communication with the help of diagram। देखिए सवाल है आपके पास कि तमाम मोड्स शो करें, उनका डायग्राम बताओ। आपके पास 3 मोड्स हैं, तो इसको डिफाइन करें, डायग्राम बताएं, इसको डिफाइन करें, डायग्राम ड्रॉ करें, इसको डिफाइन करें और डायग्राम ड्रॉ करें। पेज नंबर 126 पे इसका आंसर है, पेज नंबर 126 पे। नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसका आंसर है पेज नंबर 128। नंबर 3 डिफरेंशिएट बिटवीन गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। बहुत जरूरी सवाल है ये, गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। पेज नंबर 130 पे 130।
नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन लेन एंड विन। इसमें से तो जरूर सवाल आता है टाइप्स में से, ये बहुत यूज सवाल लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में और ऑब्जेक्टिव, तीनों पोर्शन में इसका सवाल आ सकता है। ये बहुत जरूर इसको जबरदस्त याद करें, अच्छी तरह डायग्राम के साथ याद करें। पेज नंबर 142 पे इसका गिवन है। मैंने आपको बताया कि इसमें डिफरेंस आ सकता है, या इन दोनों का डिफरेंस या दो में डिफरेंस आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में फुल सवाल आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 कोर्स में नहीं है, नंबर 7 कोर्स में नहीं है, नंबर 6 और 7 दोनों नहीं है। नंबर 8 जो है बहुत जरूरी सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रीफली डिस्क्राइब आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, याद करें इसको। और पेज नंबर 166 पे गिवन है, सही है। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास है, एक्सप्लेन वेरियस मोड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, अगेन 126 डायग्राम विद डायग्राम आंसर दिया करें, हेडिंग्स तैयारी दिया करें। व्हाट इज गाइडेड मीडिया, पेज नंबर 128 पे इसका आंसर है, ये दूसरा आपके पास इंक्लूड नहीं है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ फिर मिलेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6, दिस इज वायरलेस कम्युनिकेशन। तब तक के लिए खुदा हाफिज।